So very good morning once again. Listen, 10 we are doing our soils. So let me check your previous knowledge. Whether you have understood the things which we did yesterday or not. Okay. Name the natural resource. Write in the chat box, bete. Name the natural resource which is essential for growing plants. Write in the chat box. I'm checking your chat. Very good. Very good. Very good. Good. Harsimran, Prableen, Khanak, Gaurika, Mayank. Good. Yes. Good. Now next question. Stop writing. Stop writing. The next question is, name any one thing for which we are dependent upon soil. Name any one thing for which we are dependent upon soil. Yes, Sakshi has given answer. Vanshika, good. Any other? Food के अलावा कुछ और? Give me some other response. Okay, good. Close. Sunlight तो नहीं है बेटे. Sunlight is wrong. Okay, right. Next, soil. ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल फॉर फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स. Good. Construction material is also there. So now another question. Name the insect or name the organisms which live inside the soil. Name the organisms which live in the soil. Yes. Worm nahi bete. Madhvi, check the spellings. Roots are not animal, bache. I'm asking about the organisms or animals or insects. Yes. Worm की spelling गलत है. Good. So it means the lesson is clear. Very good. Earthworm is good. Okay. Now, last question. Name the soil in which dead plants and dead animals are mixed. Name the soil which contains remains of the dead plants and dead animals. Very good. Sakshi, good. Clap for Sakshi. Yes. Humus की spelling गलत है बच्चे. एक बच्चे ने humans नहीं बेटे. Humans wrong है. मैंने soil का name पूछा है. Yes. Good. So very good. You are giving response. It means the lesson is clear to all. So now let's start the next chapter, next topic, sorry. The next topic is just a minute. We have already done about these things. Now we are to do types of soil. Madhvi, why have you raised your hand, bete? Madhvi, unmute yourself. एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. Beta, you must check your network problem is there at your side, I think. You check your network connection. Okay.
So now, Mayank, why have you raised your hand? Let's read the next topic, types of soil. टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स की सॉइल मिलती है? मेनली जो है ना बच्चे, वो है 6 टाइप्स की. आपको पता है हमारा इंडिया जो है इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ी कंट्री है. और इतनी बड़ी कंट्री में हर प्लेस की सॉइल जो है थोड़ी थोड़ी दूर के बाद चेंज हो जाती है, रीजन टू रीजन चेंज होती रहती है. 6 टाइप की सॉइल्स हैं. एलुवियल सॉइल, हम सब सॉइल्स के बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. आपको अभी नेम्स पता करने हैं. एलुवियल सॉइल, देन कम्स ब्लैक सॉइल, देन इज रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, desert soil and the mountain soil. So हम सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. So सबसे पहले हम करते हैं alluvial soil. So alluvial soil is formed by the action of rivers. अब आप पूछोगी मैम रिवर्स के साथ कैसे बनती है? तो जस्ट इमेजिन, एक पिक्चर से आपके माइंड में होनी चाहिए. रिवर्स होते हैं ना, रिवर्स के अंदर पानी होता है. पानी जब फ्लो करता है, बहता जाता है, तो अपने साथ कई चीजें बहा करके ले जाता है. उसमें छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, जो डेड प्लांट्स सूख जाते हैं प्लांट्स, या कुछ एनिमल्स जो डेड होते हैं वो उनके रिमेन्स भी साथ साथ में बहते रहते हैं, और मिट्टी भी बहती रहती है. तो ये पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर बह करके चले जाते हैं. जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स टूटती हैं तो वो पानी में गिर जाती हैं, छोटे छोटे उनके पीसेस, और वो पानी के साथ ही बहते बहते एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. ठीक है. और इस जो ये माउंटेन के पीसेस है ना, जैसे जो टूट जाते हैं, रॉक्स में से टूट जाते हैं, उनको हम सिल्ट कहते हैं. सिल्ट या एलुवियम, हम उसको क्या कहते हैं? सिल्ट या एल्यूमिनियम. तो पानी जब बहुत तेज बहता है, माउंटेन्स के साथ टकराता है या फिर रॉक्स के साथ टकराता है, तो उसके पीसेस हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. उस पार्ट को हम सिल्ट या एल्यूमिनियम कहते हैं. और रिवर्स के साथ बहते बहते एक जगह से रिवर के साथ बहते हुए दूसरी जगह पे जाते हैं, तो रिवर जो अपने साथ चीजों को बहा करके लेके आता है, वो नदी के किनारे किनारे पे ना, किनारा होता है साइड्स, नदी की साइडों पे ना रिवर अपनी अपनी साइड्स के पास उन चीजों को डिपॉजिट करता जाता है, उन चीजों को जमा करता जाता है. When the rivers reach the plains, प्लेन एरिया में जब रिवर पहुंचता है तो ये दे डिपॉजिट दिस सिल्ट. इस सिल्ट को वो बैंक्स, बैंक्स क्या होती है? नदी का किनारा, रिवर की साइड्स, वहां पर जमा करते रहते हैं और ये सॉइल बनती जाती है. इसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो कि बहुत फर्टाइल होती है. नाउ व्हाट इज meant by fertile? Write in the chat box, what is fertile? चैट बॉक्स में लिखो फर्टाइल क्या होता है. आई एम चेकिंग योर चैट साइड बाय साइड. बेटे you need not to. Yes, Vanshika Puri has given answer. Good. The soil which is good for growing crops. जहां पर क्रॉप्स, उस मिट्टी में क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टाइल सॉइल. ठीक है. जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं ना अपने घरों में, आप पॉट्स में, गमलों में प्लांट ग्रो करते हो, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें हमें खाद डालनी पड़ती है, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, ताकि मिट्टी है ना उसकी फर्टिलिटी बनी रहे.
और उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें। तो एलुवियल सॉइल जो होती है ये बहुत फर्टाइल होती है, ये बहुत गुड होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एलुवियल सॉइल जो होती है बेस्ट सॉइल होती है। इसी सॉइल में राइस, व्हीट, मेज, कॉटन, टोबैको, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर ग्रो करती है। अब सबके मीनिंग पता है आपको? राइस सबको पता है, चावल, व्हीट होता है, कनक जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, है ना, मेज मक्की, है ना, कॉटन जिस कॉटन के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिससे धागा बना करके कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, टोबैको होता है तंबाकू, पल्सेस दालें होती हैं, ऑयल सीड्स जिन सीड्स में से ऑयल निकलता है, तो शुगर केन से हम लोग गुड़ बनाते हैं और गुड़ से फिर चीनी बनती है। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्रॉप्स जो है एलुवियल सॉइल में ग्रो करती हैं और दिस इज द बेस्ट क्रॉप, बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और ये कहाँ मिलती है? इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, हम पंजाब जो है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारा प्लेन एरिया है, प्लेन्स हैं ये, नॉर्दर्न प्लेन्स। हम नेक्स्ट लेसन भी इसका पढ़ेंगे। तो ये प्लेन एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है, तो जो कि बहुत गुड होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। इसीलिए पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, बहुत सारी क्रॉप्स जो है, तभी यहाँ पर पंजाब में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है ना, जहाँ पे क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो किया जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को। सो राइट इन अ चैट बॉक्स which type of soil is found in Punjab. Write in the chat box which type of soil is found in Punjab. Very good. हर्षिता बैंस ने आंसर दिया है एलुवियल सॉइल। वेरी गुड, इट मीन्स यू आर लिसनिंग। वेरी गुड। एक बच्चे ने कोस्टल प्लेन के बारे में भी पूछा है। कोस्टल प्लेन वो होता है ना बेटा जहां पर सी, मैंने फर्स्ट लेसन में भी बताया था, सी के साथ साथ वाला जितना भी एरिया है ना उसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। लेट मी शो यू। ओके, स्टॉप राइटिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग। लेट मी शो यू। ये देखो, जो ये ब्लू बाउंड्री है ना, ब्लू आउटलाइन की हुई है, यहाँ ये हमारी कोस्ट है। तो इसके साथ साथ वाला जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। इसके साथ साथ वाला जितना भी एरिया है, यहाँ पे भी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, तो दिस इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। और कोस्टल प्लेन में भी, कोस्टल प्लेन में भी कौन सी सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल। यहाँ पे अरेबियन सी है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दोनों तरफ वाटर बॉडीज है, ठीक है। और नीचे इंडियन ओशन इज देयर, सी यहाँ लिखा हुआ है इंडियन ओशन। तो वाटर बॉडीज के साथ साथ जितना भी एरिया है, गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात से स्टार्ट होकर के जितना भी एरिया है दैट इज कोस्टल प्लेन। जो लैंड सी को टच करती है, सी के साथ टच करती है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मिट्टी मिलती है, यहाँ पे भी जो सॉइल मिलती है वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल। इज इट क्लियर? और प्लेन एरिया आई विल शो यू। ये सारा एरिया जो ये व्हाइट कलर में है ना, यहाँ पे पंजाब है, फिर आके हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा जो एरिया है ये प्लेन्स का एरिया है। यहाँ पर सब जगह पे एलुवियल सॉइल मिलती है। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट कम्स ब्लैक सॉइल। एक सॉइल हमने पढ़ ली टाइप, अब है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक कलर की होएगी। नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे देयर इज वन पिक्चर ऑल्सो। आपकी बुक में इतनी क्लियर नहीं पिक्चर थी तो आई हैव केप्ट दिस। ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा रॉक्स। लावा वॉल्केनो, जब जमीन के अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है तो जमीन फट जाती है, उसके अंदर से लावा निकलता है और वो लावा धीरे धीरे ठंडा होता जाता है और वहाँ पर साइड्स पे स्प्रेड हो जाता है और फिर मिट्टी जो है वो काली हो जाती है। तो ब्लैक सॉइल जैसे कि नेम बता रहा है वो ब्लैक कलर की होती है। ये लावा रॉक से बनती है। इसका दूसरा नाम रिगर्ड सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल भी है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल होती है ना, दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन ग्रो करने के लिए ये सॉइल बहुत अच्छी होती है। इस सॉइल के अंदर क्ले होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस समझते हो ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको ह्यूमस बोलते हैं। सो दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये थोड़ी थोड़ी ना गीली होती है, स्टिकी। स्टिकी मतलब होता है चिपचिपी, जिसको हाथ लगाओ तो वो चिपक जाती है और इसमें बहुत पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। इट होल्ड्स, वेट होती है, स्टिकी होती है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। पानी जब इसमें डालेंगे ना तो ये बहुत सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन और शुगर केन भी इसमें ग्रो कर जाते हैं। ऑयल सीड और कहीं कहीं व्हीट और मिलेट्स भी ग्रो किया जाता है। इज इट क्लियर? और ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है, लेट मी शो यू वंस अगेन। इसको पहले हटा दूं। अब देखो डेक्कन प्लेट्यू, ये वाला सारा एरिया ना, लेट मी शो यू, ये सारा एरिया जो है दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। इसके अंदर जो है हमें कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल। क्लियर? ये सारा एरिया ब्लैक सॉइल से भरा हुआ है। और साथ में ये जो वाइट एरिया ना, ये यहाँ पर ज्यादातर होती है। लेट मी शो यू। यहाँ से लेकर के ना, यहाँ से लेकर के ये सारा एरिया जो है दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलती है, यहाँ पर ब्लैक कलर में शो किया हुआ है। क्लियर? सो इन दिस वे दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग cotton and sugarcane and oil seeds. Next we have ये कहाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट्स के अंदर ब्लैक सॉइल मिलती है। देन कम्स रेड सॉइल। रेड सॉइल जैसे कि नेम बता रहा है वो रेड कलर की होती है। रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ज्यादा होता है। देखो जरा, रेड सॉइल में आयरन ज्यादा है। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर ऑल्सो। ये इतनी फर्टाइल नहीं होती, मतलब ये इसके अंदर प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसमें फर्टिलाइजर्स या फिर खाद डालें, फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसमें केमिकल मिक्स किया जाता है और वो मिट्टी के अंदर ऐड जब कर देते हैं तो ये क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्पफुल होती है। इसमें क्रॉप्स ग्रो कर जाती है। जो क्रॉप्स ग्रो करती है वो कौन कौन सी है? राइस, मिलेट्स, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट होता है मूंगफली, टोबैको, वेजिटेबल्स। ठीक है? और ये जो सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड,
मध्य प्रदेश में मिलती है। सो इन दिस वे रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, इसके अंदर आयरन मिलता है, ठीक है। देन कम्स लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, अब आप देखो इसकी पिक्चर्स देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये क्रॉप्स के लिए ग्रोथ अच्छी है, नो, इसमें इतनी अच्छी सी क्रॉप्स ग्रो नहीं करती है, ये फर्टाइल नहीं होती है। इसका भी थोड़ा थोड़ा रेड कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम मिलता है, जिस कारण से ये देखने में थोड़ी सी रेड कलर की होती है। इट इज नॉट वेरी फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होती है। और इसमें ऐसा क्यों होता है कि जो एरियाज जहाँ पे बहुत तेज बारिश होती है ना, हाई रेनफॉल होती है, टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, बहुत गर्मी वाला होता है, सन की हीट ज़्यादा पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो मिट्टी है बारिश के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर बह जाती है और अपर मोस्ट लेयर चली जाएगी। अपर मोस्ट लेयर ही तो गुड होती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए, तो जब वही नहीं रहेगी तो प्लांट्स ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट लेयर जब चली जाती है तो उसमें से मिनरल सारे रिमूव हो जाते हैं। मिट्टी के अंदर से जब मिनरल ही नहीं रहेंगे तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं करती, सिर्फ वही क्रॉप्स ग्रो करती हैं जो जिसके अंदर हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर डाल देते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, थोड़े से फ्रूट्स, कोकोनट, रबर, ये इस सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलती है? इट इज फाउंड इन कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड असम। I hope the lesson is clear to everyone. So let me ask your doubts. जो भी आपके डाउट्स हैं